So the third topic in alcohols, phenols, and ethers I'll be taking up is physical and chemical properties of alcohols. Now, among physical properties, the common ones like state, physical state. Now, coming to that, very simple. The lower members of the alcohol family are liquids, are nearly up to 12 carbon atoms, and then they become solids. After that, Bexy solids, and then they are soluble in water. Why? Because of hydrogen bonding. This um, alcohols are little polar in nature. Alcohols are polar in nature. Due to this polarity, they show many properties. So one of which is solubility in water. But as the size of the alkyl group increases, solubility decreases because alkyl group is water repelling. It's hydrophobic. So that's why solubility decreases. So the question over here can come like this: the order of solubility. So methanol is more soluble than ethanol, which is more soluble than propanol, and so on. So as the size of the alkyl group increases, the um, solubility in water also decreases. Okay, then coming to the boiling points. Now boiling points of alcohols increase with the increase of the size. This is the solubility in water ट्रेंड. सो क्वेश्चन इस पे आ जाता है एमसीक्यू में या वैसे भी कि ऑर्डर ऑफ solubility in water, and then it comes about the boiling point, and a boiling point of alcohols increases with the size, because with the size alkyl groups की जो van der Waals forces होती हैं they also increase. So the boiling point order follows the reverse trend like this. So propanol is more boiling, high boiling than ethanol, which is higher boiling than methanol, right? Then one more important thing, with branching, boiling point decrease, which is very important. With branching, बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पैकिंग जो होती है वो क्लोज, जो उसमें क्लोजनेस होती है दैट डिक्रीजेस, एंड हेंस विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. सो इफ आई टॉक अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो प्राइमरी अल्कोहल्स विद सेम नंबर ऑफ कार्बन are higher boiling than secondary are higher boiling than tertiary. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं. देन अब तक जितने भी हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं, इफ आई कंपेयर देम, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लाइक वी हैव रेड अल्कोहल्स अभी पढ़ा हमने, इसमें मिथेनॉल. वी हैव रेड क्लोरोइथेन containing the same number of carbon atoms 1 and methane, हमने ये पढ़े हैं अब तक. तो इनको कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज हायर देन हेलोल्केन, व्हिच इज हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन अल्केन. So methanol is higher boiling than methyl chloride N, which is further higher boiling than methane, because obviously hydrogen bonding वाली बात आ जाती है. That's why. Now coming to the chemical properties of alcohols. Okay, so let me shift to next page. So केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं. उससे पहले मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले, यानी कि केमिकल रिएक्शंस करने से पहले. नाउ कमिंग टू दिस, I told you that alcohols are polar in nature because of the electronegativity of this oxygen. This bond is slightly polar, जिसकी वजह से this cleavage becomes easier, and hence यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकालना becomes easier. So I can say that alcohols behave as acids. So they are weak acids. They are acids, but they are weak acids, even weaker than water. Even weaker than water. And इसपे दो क्वेश्चन आते हैं. One, why it is weaker than water? Why alcohols are weaker than water? Because after the removal of hydrogen, this ion, this is known as alkoxide ion. Alkoxide ion form is quite unstable. Why? Because इसमें methyl group attached है, which has plus I effect, that is inductive effect इसका positive है. तो ये
पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा, विच विल मेक दिस अल्कोक्साइड आयन इवन मोर अनस्टेबल। लेकिन जब हम वाटर में बात करते हैं तो वाटर को रिमूव करने के, वाटर में से जब प्रोटॉन जाता है तो दिस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे ये अल्काइल है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, सो ऑब्वियसली दिस इज अनस्टेबल एज कंपेरेटिव टू दिस, एंड हेंस इट मेक्स देम लेस acidic as compared to water because of the instability of the alkoxide ion। और इसी पे एक क्वेश्चन और बनता है कि if you compare the acidic strength of primary, secondary and tertiary alcohols, तो कौन से ज्यादा, क्या ऑर्डर होगा? सो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। व्हाई? बिकॉज अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करूं तो से फॉर एग्जांपल आई टेक इथेनॉल, तो यहाँ पे जब इथेनॉल में से जब ये हाइड्रोजन जाएगा, सो द आयन फॉर्म विल बी इथोक्साइड आयन, यानी कि दिस वन, राइट। व्हाइल इफ आई टॉक अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल लाइक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जब यहाँ से प्रोटॉन अलग होगा तो जो आयन बनेगा नेगेटिवली चार्ज, वो ये बनेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट अ टर्शियरी अल्कोहल, तो जब यहाँ से upon, if it is acidic, so the after release of proton, the ion formed, the alkoxide ion formed will be this O negative and H positive, यहाँ पे H positive। तो अगर हम इन तीनों आयंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे आई इफेक्ट है सिर्फ इस इथाइल ग्रुप का, जबकि यहाँ पे आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इज फ्रॉम बोथ द मिथाइल्स, एंड हियर प्लस आई इफेक्ट इज फ्रॉम 3 मिथाइल यानी कि 3 अल्काइल ग्रुप्स, सो व्हिच मेक्स इट लीस्ट स्टेबल। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्योंकि ये है, क्योंकि अल्कोक्साइड आयन जो है प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, हेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ of primary alcohol is more than secondary, it is more than tertiary। So this was about little about the chemical property or the acidity of the alcohols। but यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए जो बनते हैं। अब coming to chemical reactions, जो main reactions हैं, so chemical reactions of alcohols are mainly three type, मेनली ऑफ 3 टाइप। एक तो जो मैंने अभी बताया जो एसिडिक वाला पार्ट है, जैसे कि ROH क्लीवेज, यानी कि इसकी रिएक्शंस विद, जो मैंने अभी बताया दिस बॉन्ड क्लीवेज, ये वाले बॉन्ड की जहां से पता चलता है कि अल्कोहल्स एसिडिक है। एक रिएक्शन है जिसमें पूरा OH भी निकल जाएगा, रिएक्शन ऑफ reactions involving ये वाला बॉन्ड क्लीवेज। ओके, वन मोर जिसमें ये OH ही निकल जाएगा, ये तो हमने की भी हुई है, ठीक है, जैसे क्लोरोल्केन्स बनते हैं OH के रिमूवल से। देन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल भी होती है, जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी कि यहां से भी कुछ जाएगा और यहां से भी कुछ जाएगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ROH एज अ होल, तो ये हो गई हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। सो विल स्टार्ट विद ऑल ऑफ दीज वन बाय वन, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ROH bond cleavage। So I'm going to move to next page। So first is reactions of कौन सा bond cleavage, this cleavage, this जिसमें प्रोटॉन निकलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हमारी हैं मेनली 5 टाइप्स की, 5 रिएक्शंस है मतलब जो हम करेंगे इसमें। फाइव टू 3
4 5। ओके, अभी इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज विद एक्टिव मेटल्स। अब आपको मैंने जैसे बताया कि ये बॉन्ड टूट सकता है, तो यहाँ पे इसकी जगह कोई मेटल लग जाए। सो विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, राइट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके साथ रिएक्शन, तो उनसे क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल अल्कोक्साइड बन जाएगा, जैसे कि ये अल्कोहल with sodium metal gives you what, gives you RONA plus H2O, सोडियम whatever इथोक्साइड अल्कोक्साइड जो भी बन जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ और ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इथेनॉल एज एन अल्कोहल लिया एंड मैंने दूसरा लिया मैग्नीशियम एज अ मेटल जो मैं यूज कर रही हूँ। सो इट गेव मी मैग्नीशियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी और रिएक्शन में आगे कर देती हूँ। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने एक टर्शियरी अल्कोहल ले लिया, ठीक है। इसके 6 मॉलिक्यूल्स लगेंगे इस रिएक्शन के लिए, और मैंने दूसरा लिया मेटल लिया एक्टिव एल्यूमिनियम। सो यहाँ पे बना मेरा CH3 CH3 CH3O, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 इसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो दिस विल बी, नो दिस इज करेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, आई गेस मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती करी है। यस, सो दिस विल बी करेक्ट CH3 CH3O thrice Al and plus hydrogen. So this is the reaction with active metals, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो गई। अभी हम करते हैं सेकेंड टाइप की रिएक्शन। इसमें सेकेंड है विद मेटल हाइड्राइड्स, वेरी सिंपल, विद मेटल हाइड्राइड्स, जैसे सोडियम हाइड्राइड के साथ हाइड्राइड्स, ओके। सो वेरी सिंपल रिएक्शन, मैंने लिया मीथेनॉल, इसकी रिएक्शन कराई मैंने सोडियम हाइड्राइड, एग्जैक्टली वही होगा जो पहले हुआ। बेसिकली ये बॉन्ड की क्लीवेज होनी है तो यहाँ पे सोडियम लग जाएगा। सो CH3ONA प्लस ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कंबाइन कर गए, H2, ये बन गया। सो ये होगी हमारी सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। अभी हम करते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। होना वही है, क्या होना है, क्लीवेज होनी है ROH OH के में प्लस सपोज R-MgX, ड्राइथ होना क्या है, मैंने बोला क्लीवेज, तो यहां से क्या होगा, बेसिकली ये एच जो है ये इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा R-H प्लस, और ये जो OR पार्ट है ये इनके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा MgORX। सो लेट मी राइट दिस रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया इथेनॉल एंड दूसरा मैंने लिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ड्राई ईथर, कंडीशन फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। सो ये जो हाइड्रोजन है ये चला गया इसके पास, ओके। तो ये हो गया हमारा, एक तो बन गया मीथेन और दूसरा बन गया MgOC2H5Br। सो ये हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये हम एस्टर्स में भी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम एस्टेरिफिकेशन, ओके। सो एस्टेरिफिकेशन में क्या करते हैं, एस्टेरिफिकेशन को हम पीछे कर लेते हैं। सो कौन सी मैं करा रही हूँ, फोर्थ टाइप यहाँ पे करवा रही हूँ एस्टेरिफिकेशन। से बेसिकली एस्टर्स बनेंगे
क्या करेंगे हम, इनमें अपना अल्कोहल लेंगे R डैश, सपोज इट इज R डैश, ओके, ROH एंड R डैश COH, मतलब यहाँ पे R और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड मतलब बेसिकली ये लगेगा, सो ये होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। नाउ दिस रिएक्शन इज a reversible रिएक्शन। इसमें हम H2SO को डालते इसलिए कि वो वाटर को कंज्यूम करके रिएक्शन को ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट रिमूव कर देते तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड को शिफ्ट हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO का काम ही यही है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, मतलब वो वाटर को रिमूव करता है एंड हेंस it shifts the equilibrium towards the right, and this is what, this is ester. So say for example आपने यहाँ पे लिया मीथेनॉल एंड यहाँ पे लिया आपने प्रोपेनोइक एसिड एंड यू कैरी आउट दिस रिएक्शन, सो ये एस्टर बन जाएगा CH3, ओके, एस्टर बनेगा, मैंने गलत बनाया है, एस्टर बनेगा ये वाले पार्ट R-CO जो है ये तो वही का वही रहेगा, यहाँ H की जगह लग जाएगा ये वाला R, क्योंकि हमें OH बॉन्ड की क्लीवेज करनी है। तो इस बॉन्ड की क्लीवेज के साथ C2H5COCH3 प्लस वाटर, यही हमने करना था ना। हमने क्या करना था, हमने इस बॉन्ड की क्लीवेज करनी थी, नो नॉट हियर, नॉट इधर, इधर मैंने एसिड में करके दिखा दी, यहाँ पे एल्कोहल्स में हमें इस बॉन्ड की क्लीवेज करनी थी, करेक्ट। तो यहाँ से OCH3 जो है वो यहाँ चला गया आपके इस पार्ट पे, एंड आपका ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन OH निकल के वाटर बन गया, एंड आपका ये वाला पार्ट मूव टू दिस कार्बन मेकिंग इट एन एस्टर। तो ये होगी हमारी एस्टेरिफिकेशन विच अगेन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें under this topic is fifth one, which is with acyl halides with acyl chloride and और किसके साथ है, with acid anhydrides, acid anhydrides के साथ। इसमें भी एस्टर फॉर्मेशन होता है, इसमें भी होता क्या है, एस्टेरिफिकेशन या एस्टर फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में भी। तो ये रिएक्शन भी मैं पीछे करूंगी, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया RCOCl, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड क्लोराइड। हमने ये नोमेनक्लेचर में पढ़े थे एसिड क्लोराइड्स एंड ये हमारा अल्कोहल है, एंड ये रिएक्शन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन, ठीक है, पाइरीडीन और डाइमिथाइल एनिलीन की प्रेजेंस में, यानी कि इसकी प्रेजेंस में NN डाइमिथाइल, ये इसकी प्रेजेंस में की जाती है, एंड व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे बन जाता है हमारा एस्टर RCOR डैश प्लस HCl। अगेन व्हाट हैपेंड, ये जो है हमारा बॉन्ड ये क्लीव हुआ है, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है ये जाके इस पे लगा, यहाँ से Cl और H कंबाइन करके बन गया HCl। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COCl और यहाँ पे आपने लिया इथेनॉल, तो पाइरीडीन हुआ यहाँ पे लिया हमने, तो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, सो CH3CO C2H5 और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो HCl, बिकॉज ये वाले पार्ट ने जाना है इस कार्बन पे। इन द सेम वे एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ, एसिड एनहाइड्राइड जैसे ये, ठीक है, प्लस अगेन एल्कोहल, सेम पाइरीडीन के सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हमारा बनेगा R, इसमें बनेगा एक एस्टर बनेगा
और एक हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक पार्ट एस्टर के एक तो यहां से आएगा, ऐसे क्रॉस होगा। आई गिव यू प्रॉपर एग्जांपल। जैसे हमने लिया इथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया हमने, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड। हमने इसको ट्रीट किया इथाइल एल्कोहल के साथ, तो एस्टर तो बनेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, कि जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका मूव करेगा कार्बोनिल पे, तो ये बनेगा CH3CO, यहाँ पे पाइरिडीन जरूर लिखना है हमने, प्लस दूसरा बनेगा एसिड बनेगा हमारा CH3COOH, जो ये H है ये यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे हुई है क्लीवेज CH3COOH, तो एसिड एंड एनहाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, पाइरिडीन एंड और एन डाइमिथाइलिन सॉल्वेंट नहीं है, दे आर कैटलिस्ट, दीज आर कैटलिस्ट, ये जो हमारे हैं ये कैटलिस्ट है। और अगर हम जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो लिया है, ये लिया मैंने एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड। और जैसे पीछे मैंने एसिटाइल क्लोराइड लिया था, इथेनॉइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड लिया था, तो इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन भी बोलते हैं अगर हम ये लेते हैं। वैसे तो इन जनरल इट इज एस्टर फॉर्मेशन, एसाइलेशन, बट जब हम यहाँ पे ये कंपाउंड्स लेते हैं, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं एज अ क्लोराइड, एज अ एसाइल क्लोराइड, and acetic anhydride as an anhydride, in this particular reaction this reaction is known as acetylation, इसको बोलते हैं हम acetylation। और pyridine या N-dimethyl aniline are used as a catalyst, sorry not as a solvent, as a catalyst। तो ये हो गई हमारी reactions with ROH cleavage, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब हम करेंगे सेकेंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ROH क्लीवेज। चलिए सेकेंड टाइप पे रिएक्शंस में चलते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ROH, जिसमें OH निकलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, क्लीवेज। सो ये रिएक्शन जो है इसमें अगर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो होगा क्या, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकैटाइन विल बी फॉर्म, यू नो दैट, ये होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज रिएक्शंस विल बी उल्टा, जो हमने पिछला किया उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। वाई? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन formed, because tertiary carbocation is more stable than secondary, which is more stable than primary। तो इसकी जो रिएक्शंस हैं वो हैं 4 टाइप्स की। इसमें एक रिएक्शन विद अमोनिया आईएससी के सिलेबस में नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कर लो बिकॉज ये कन्वर्जन में यूज आती है रिएक्शन, सो बेटर यू डू इट। सो फर्स्ट है रिएक्शन फर्स्ट टाइप की, इसमें है विद हेलोजन एसिड्स, विद हेलोजन एसिड जो हम कर चुके हैं, यानी कि HX के साथ। ठीक है, ये हेलोल्केन्स में हम कर चुके हैं। क्या करते हैं हम ROH को ट्रीट करते हैं HX से, HX मतलब यहाँ पे HCl HBr HI होता है, HF नहीं यूज करते, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम नहीं यूज करते। रिएक्शन आर जनरली एक्सप्लोसिव विद फ्लोरीन, सो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऐसे नहीं की जाती, वो हमने पढ़ा था हेलोल्केन्स में। तो इट गिव्स हेलोल्केन्स एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद हो हमने करी थी रिएक्शन विद HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में
प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स की, विच वाज नोन एज ग्रोव्स प्रोसेस। ये हमने हेलो अल्केन्स में करी थी, ठीक है, ये हमने करी थी। टर्शियरी अल्कोहल्स रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, और बाकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हैं दे रिएक्ट at they react in the presence of anhydrous zinc chloride, so CH3 ये बनता है, जबकि tertiary react at room temperature because they are highly reactive। tertiary में जरूरत नहीं होता anhydrous HCl का, anhydrous zinc chloride का, प्लस वाटर। सो ये है रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड, हेलोजन एसिड्स, ठीक है, HX के साथ। और इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑब्वियसली वही है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, जैसे मैंने पहले बताया। ये हमारे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल्स भी यूज होगी आगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी रिएक्ट इमीडिएटली, सेकेंडरी टेक 5 मिनट्स, एंड जो आपके प्राइमरी होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ये हम करेंगे आगे, एक टेस्ट करेंगे, ल्यूकास टेस्ट आएगा। आई विल एक्सप्लेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो, ये एसिड जो है ये भी हमने किया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI की सबसे ज्यादा है, देन HBr की, देन HCl की, उसका रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो अगेन आई टोल्ड यू इन द हेलोल्केन्स इटसेल्फ। HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लोअर, लोएस्ट अमंग ऑल, देन HBr, देन HCl, हेंस रिएक्टिविटी इज दिस ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर। सेकंड जो है वो हम करेंगे विद PCl5 फॉस्फोरस हैलाइड्स, ये भी हम कर चुके हैं हेलोल्केन्स में। PCl5, PCl3, PBr3, PI3 etc. इफ यू रिमेंबर ये हम कर चुके हैं। सो इथेनॉल प्लस PCl5 on reaction gives ethyl chloride plus POCl3 plus HCl, ठीक है। एंड अगर यही रिएक्शन PCl3 के साथ करवाई जाती है तो इसमें 3 मॉलिक्यूल्स लगते हैं अल्कोहल के, एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस। 3 molecules of chloroethane are formed along with phosphorus acid। और अगर हमें रिएक्शन करानी हो PBr3 एंड PI3 के साथ एग्जैक्टली सेम होती है, द ओनली थिंग इज PBr3 एंड PI3 आर नॉट दैट स्टेबल, तो क्या करना पड़ता है, फॉस्फोरस एंड आयोडीन से को यूज करना पड़ता है। फॉस्फोरस एंड आयोडीन और फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन को डायरेक्टली यूज करना पड़ता है, PBr3 एंड PI3 को इमीडिएटली प्रिपेयर करना पड़ता है, except that reaction is exactly similar because ये unstable होते हैं PBr3 and PI3। चलिए थर्ड करते हैं, रिएक्शन है विद थाइनिल क्लोराइड, ये भी कर चुके हैं विद SOCl2। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन टू प्रिपेयर क्लोरोअल्केन्स, बिकॉज में बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। ROH plus SOCl2 upon reaction gives RCl plus sulfur dioxide plus HCl, because byproducts are gases, so this is the most convenient reaction for preparation of chloroalkanes। पाइरिडीन की प्रेजेंस में, पाइरिडीन के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, बेस्ट मेथड फॉर क्लोरोअल्केन्स, ये मैंने कराया था। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ द टॉपिक, दिस इज विद अमोनिया। अमोनिया के साथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या करते हैं हम, अल्कोहल को काफी हीट करते हैं, मतलब वेपर्स उसके क्रिएट करते हैं, एंड देन इट इज द वेपर्स आर पास्ड ओवर अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगी। सो ओके, आई विल डू इट हियर। फोर्थ वन with ammonia. So
alcohols react with ammonia in the presence of alumina at 633 Kelvin to give primary amines and water. Now, if your alcohol is present in excess, okay, so this alcohol will react with amine. ये मैंने ऐसी एक रिएक्शन हॉफमैन एनालिसिस कराई थी आपको हेलोअल्केन्स में, ये कुछ वैसे ही है. So what will happen is, if alcohol is present in excess, it will react further with the primary amine formed under same conditions to form secondary amine. Okay, secondary amine. And if this is again present in excess alcohol, it will react with the secondary amine formed under the same conditions to form tertiary amine, NN, this thing. So basically, अगर मैं all in all reaction करूं, I can write it. If I take 3 moles of methanol and ammonia in the presence of your alumina as catalyst and temperature as 633 Kelvin, I will get tertiary amine, NN dimethyl methanamine with 3 molecules of water. NN dimethyl amine. No, methyl methanamine. NN dimethyl और इस पार्ट के लिए methanamine. So this is reaction with ammonia. यानी कि हम चाहें तो रिएक्शन को अमोनिया स्टेज तक यहाँ प्राइमरी मीन तक रोक सकते हैं, ठीक है, बट ये रिएक्शन आगे चलती जाएगी अगर आपका अल्कोहल एक्सेस में है. सो दिस इज द रिएक्शन विद अमोनिया. Okay, so this was about your ROH की क्लीवेज. अब आ जाती हैं हमारी रिएक्शंस विद ROH यानी कि अल्कोहल ग्रुप एज अ होल. So let me check how many reactions are there. Just a second. There are 4 kind of reactions. First of all, मुझे तो स्टिल मुझे चेक करना है उसमें कितना लंबा हो रहा है वो. So dehydration, okay, oxidation, dehydrogenation and haloform reaction. So what I'll do, I'll take up this last type of reaction. Just a second. Dehydration. Okay. And then the reaction is just I'm checking how many reactions are there. चलिए ये रिएक्शन ये हम खत्म कर लेते हैं टॉपिक. सो नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ROH एज अ होल, एज होल, यानी कि कंप्लीट अल्कोहल ग्रुप की. सो ये हमारी रिएक्शन आ जाती हैं 4 कैटेगरीज में. 3 and 4. फर्स्ट कैटेगरी है इसमें डिहाइड्रेशन की. फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन. और डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर. तो अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल किया जा सकता है. इट्स वेरी इजी. नाउ डिहाइड्रेशन जो है इट कैन बी डन बाय 2 मेथड्स. एक है
with concentrated sulfuric acid or phosphoric acid, and second है with alumina Al2O3। अब मैं इस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। सो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है that follows order, ease of dehydration of alcohols is tertiary, secondary, primary. Reason? Because reaction proceeds through carbocation formation. Proceeds through carbocation formation. ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका एसिड हमने डाला, जैसे मैं अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो आपका जो H2SO4 में से जो हाइड्रोजन है वो अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देता है और फिर उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है एंड फिर जो कार्बोकेटाइन बनता है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होकर अल्कीन बन जाती है। बेसिकली डिहाइड्रेशन में अल्कीन्स बनते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन रिएक्शंस की, तो मैं इनको बाद में डिस्कस करूंगी वन बाय वन। पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ रिएक्शंस का कि क्या क्या ये रिएक्शंस हैं। ओके, सेकंड रिएक्शन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन कैन बी डन विद any one of these oxidizing agent which I am mentioning. So acidic or alkaline potassium permanganate, acidic sodium dichromate or potassium dichromate then can be done using strong oxidizing agent like nitric oxide or nitric acid or chromium oxide. इस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, एंड इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज बता देती हूँ इस रिएक्शन की, बिकॉज मैं यहाँ ब्लू पेन रेड पेन से मेंशन करी तो आपको समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। प्राइमरी अल्कोहल्स एंड ऑक्सीडेशन चेंज इनटू aldehydes. Secondary alcohol change into ketones, which on further oxidation change to carboxylic acids, and tertiary alcohols change to ketones on oxidation, which on further oxidation change to carboxylic acids plus carbon dioxide plus water, राइट। सो ये होगी हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन। अब आ जाती है थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ही है ये भी, बट दिस इज डिहाइड्रोजिनेशन विद कॉपर, with copper at 573 केल्विन। इसमें प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन पे देते हैं एल्डिहाइड्स, ओके एल्डिहाइड्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं कीटोन्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स देते हैं अल्कीन्स। इंपॉर्टेंट, ओके। देन लास्ट है रिएक्शन विद, इसको बोलते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कुछ केसेस में, सो विद हेलोजेंस। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। विद हेलोजेंस, तो ये है हमारी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे ये हेलोजेंस है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज हेलोजिनेटिंग एजेंट। सो ऑक्सीडेशन एंड देन हेलोजिनेशन। ये रिएक्शन हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन की फॉर्म में करी थी, आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में ड्यूरिंग हेलो अल्कीन्स। सो बेसिकली
ये हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ी है। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो पढ़ी थी उसमें ये हमने पढ़ा है, ये पार्ट पढ़ा है हमने। इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव एल्डिहाइड्स, एंड फिर क्या हो जाती है इनकी इनकी हेलोजिनेशन हो जाती है, देन इनकी हो जाती है हेलोजिनेशन। पहले प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, फिर इनकी हेलोजिनेशन हो जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनकी हो जाती है हेलोजिनेशन। और टर्शरी अल्कोहल्स नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सो टर्शरी अल्कोहल्स की कोई रिएक्शन नहीं होती। सो दीज आर 4 broad classification of reactions of alcohol molecule as a whole. So let us start with the first one. First one, which is dehydration. अब dehydration के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहती हूँ। So dehydration जो मैंने बोला था, concentrated H2SO4 या phosphoric acid के साथ, मैंने दो तरह की बोली थी। So in the presence of concentrated H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड, ये दो तरह की होती है। फर्स्ट, which leads to the formation of alkenes, formation of alkenes take place, and second is formation of ethers take place. So first करते हैं हम formation of alkenes, ये रिएक्शन करते हैं। सो इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल्स की। सो CH3 CH2OH concentrated H2SO4 443 Kelvin CH2 CH2 प्लस वाटर। अगर पॉसिबिलिटी हो कि दो तरह की अल्कीन्स, आई मीन दो तरह के बन सकते हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। जैसे ये वाला केस है CH3 CH2 CH2 CH2OH, सेम कंडीशंस। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो है कि ये अल्कीन बने आपका CH3 CH2 CH ये वाला। एक पॉसिबिलिटी है ब्यूटूइन की, एक है हमारा ब्यूटवानीन। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा हाईली सब्स्टिट्यूटेड, एंड माइनर प्रोडक्ट दूसरे वाला बनेगा। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। इनमें कंडीशन थोड़ी माइल्ड हो जाती है। The reaction take place under mild conditions, because जैसे मैंने बताया कि टर्शरी रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, देन सेकेंडरी प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो CHOH CH3 85% फॉस्फोरिक एसिड, टेम्परेचर कंडीशन भी कम हो गई है, 443 से 358 हो गया है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। एंड अगर टर्शरी की बात करें, टर्शरी अल्कोहल्स, तो और रिएक्शन माइल्डर, कंडीशंस माइल्डर हो गई, माइल्डर कंडीशन। CH3 CH3OH 20% फॉस्फोरिक एसिड लिया। ओके, टेम्परेचर यहाँ पे 443
केल्विन होगा, यहाँ पे होगा 358 केल्विन। तो हमारा अल्कीन बन गया ये। अब थी फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स सेम एसिड्स के साथ। इस केस में अल्कोहल हैज टू बी टेकन इन एक्सेस, अल्कोहल इज टेकन इन एक्सेस, तो ये रिएक्शन होगी। यानी कि सपोज आपने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल लिए एंड ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करा रही हूं मैं, प्राइमरी अल्कोहल है एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे आपका बनेगा डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, प्लस ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बिकॉज डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन है जो मैंने करी है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो रिएक्शन होती है ये विद एल्यूमिना भी होती है, राइट। अब हम वो करते हैं विद एल्यूमिना। नाउ सेकेंड टाइप विद एल्यूमिना, इसमें भी दोनों तरह की रिएक्शंस होंगी, एल्कीन फॉर्मेशन एंड ईथर फॉर्मेशन। ठीक है, एल्कीन एंड ईथर फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर अल्कीन बनाना है तो इथाइल अल्कोहल की ज्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिना 633 केल्विन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अगर ईथर बनाना है तो इथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी। एल्यूमिना 633 केल्विन, डाई इथाइल ईथर प्लस वाटर। ये होगी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। सेकंड है ऑक्सीडेशन। सो चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पे। सेकंड टाइप थी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं वो हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने मेंशन किए थे। तो प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्शन पहले कराती हूँ। CH3 CH2 यानी कि OH यानी कि इथेनॉल, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है विद सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। ठीक है, ये एंड ये हो जाता है इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू व्हाट, मैंने बताया था इनटू एल्डिहाइड्स। प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं। फिर उसके बाद फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन भी इजी है। सोडियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड ले लो एंड इट चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। सेकेंडरी अल्कोहल्स पे आते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेप तो इजी है, यानी कि फर्स्ट जो है ऑक्सीडेशन दैट इज इजियर, दे गेट ऑक्सीडाइज क्वाइट इजीली सेम कंडीशंस में। ठीक है, तो एंड फॉर्म कीटोन, इथे प्रोपेनॉन बन गया। ठीक है, अब जो ऑक्सीडेशन है दैट टेक्स प्लेस अंडर हार्श कंडीशन। ऑक्सीडेशन जैसे नाइट्रिक एसिड वगैरह के साथ करनी पड़ती है।
सो हार्श हो जाती है ये, एंड ऑक्सीडेशन पे यहाँ पे क्लीवेज हो जाती है बॉन्ड की, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो एक बनेगा आपका इथेनोइक और दूसरा बनेगा आपका मीथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन थे, तो एक तो इस पार्ट से बनेगा और एक इस पार्ट से बनेगा। सो ऐसे हमारे 2 हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म, बट दिस ऑक्सीडेशन फर्दर टेक्स प्लेस अंडर हार्श कंडीशंस। सो टर्शियरी कोल्स की बात करें, सो डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। नाउ व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? जो कार्बन जिसपे OH अटैच्ड है उस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये सब बीटा हाइड्रोजन है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होती है। सो इसकी ऑक्सीडेशन की जाती है नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड इट गिव्स कीटोन, एंड इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन अगेन हार्श कंडीशंस में फिर की जाती है, ऑक्सीडेशन वही हार्श कंडीशंस में, तो बनता है इथेनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पे फॉर्मिक एसिड जो बनता है वो स्टेबल नहीं होता अंडर दोज कंडीशंस, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शंस थी हमारी डिहाइड्रोजिनेशन विद कॉपर। सो थर्ड है डिहाइड्रोजिनेशन विद कॉपर। चलिए, प्राइमरी एल्कोहल्स मैंने बताया था एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, CH3 CH2OH, कॉपर 573 केल्विन, CH3, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन। सेकेंडरी एल्कोहल्स जो हैं वो कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, CH3 CHOH, सेम कंडीशन, CH3 कीटोन्स में। एंड टर्शरी एल्कोहल्स की रादर डिहाइड्रेशन हो जाती है, नॉट डिहाइड्रोजिनेशन, टू फॉर्म एल्कीन्स, CH3OH, सेम कंडीशंस, कॉपर 573 केल्विन, CH3 एक हाइड्रोजन यहां से गई, OH यहां से गया, CH2 प्लस वाटर। सो ये हो गई हमारी रिएक्शन। एंड उसके बाद लास्ट रिएक्शन कौन सी बचती है? विद हेलोजन्स। सो देन लास्ट रिएक्शन इज विद हेलोजन्स, फोर्थ विद। जैसे मैंने बोला हेलोजन्स ऑक्सीडेशन करते हैं पहले अल्कोहल्स की, एंड देन फिर उनकी हेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है। ये हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन की फॉर्म में की हुई है। तो चलिए प्राइमरी अल्कोहल्स लेके करते हैं पहले। इथेनॉल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसकी क्लोरीन यूज करें अगर, तो इसकी ऑक्सीडेशन करेगा क्लोरीन, एंड अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन पे क्या बनते हैं? एल्डिहाइड्स। सो this will be formed, and then this chlorine further will chlorinate, तो क्लोरीनेशन हो जाएगी। अगर आपको याद हो ट्राइक्लोरो इथेनॉल, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, क्लोरल बनाया था हमने जब हमने क्लोरोफॉर्म बनाया था उसमें, तो CCl3COH ये हमने किया था रिएक्शन, इफ यू रिमेम्बर दिस रिएक्शन। सो ये क्लोरल बना था,
हेलोफॉर्म रिएक्शन जो की थी उसमें हमने किया था। इन द सेम अगर मैं ब्रोमिनेशन करूं सेकेंडरी की, टर्शियरी तो रिएक्ट ही नहीं करते, मैंने बताया। OH, तो मैं ब्रोमीन से कर लेती हूँ अब ये रिएक्शन, अल्कोहल ब्रोमीन। तो ये पहले करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन पे सेकेंडरी अल्कोहल्स के बनते हैं कीटोन्स। एंड अब ये करेगा हेलोजिनेशन, ब्रोमीन क्लोरीन, मतलब ब्रोमिनेशन बेसिकली, ब्रोमिनेशन। यहां बनेगा CbR3 CO CH3, ट्राई ब्रोमोप्रोपेनोन। क्या बन गया ये? ट्राई ब्रोमोप्रोपेनोन बन गया। तो ये हमारी हो गई विद हेलोजन्स रिएक्शन। सो दिस वाज अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स, ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, जिसमें से कुछ पार्ट ISC के सिलेबस से कटा हुआ है, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। ओके, बट उसमें से भी आई वुड सजेस्ट एमीन वाली रिएक्शन जो थी अमोनिया के साथ, यू शुड डू, बिकॉज वो कन्वर्जन्स में आ जाती है। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्टिंक्शन टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, एंड देन वी विल डू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स।